हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है सोशल कंट्रोल यानी सामाजिक नियंत्रण। और ये टॉपिक आपके समक्ष जो है हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में रहेंगे, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम के बच्चों के लिए। आज हम सोशल कंट्रोल यानी सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत हर एक बात का एनालाइज करेंगे, समझेंगे, जानेंगे और इसकी जो है हर एक पहलू पर विचार करेंगे। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा हर एक क्लास के बच्चों के लिए जिनके सिलेबस में सोशल कंट्रोल है यानी सामाजिक नियंत्रण है, उनके लिए ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। देखा जाए तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। अकॉर्डिंग टू द सोशल कंट्रोल, नेक्स्ट proponents here, Tanvis Hirschi. Tanvis Hirschi, that's the most important proponents here. And he say, Travis Hirschi's adopted to the Taoist as a concept. There is a most important Travis Hirschi is a follower here, Taoist. And Taoist concept of investment in a conventionality or stake and conformity, that's important. He stressed the rationality in their decision whether to engage in a crime and agreed that a person was less likely to be choose crime if they had a strong social bond. That's important here because the less likely to choose a crime if they had a strong social bond. That's important. And the next year, the journal theory of crime term is HCR. That's important. The journal theory of crime proposed by the Tanvis Hirschi, that's important. The Hirschi has a sign, a move away from his bonding theory. Hirschi has a sign, a move away from his bonding theory, and his cooperations with the matches are Gottfredson. Cooperation with their matches are Gottfredson. And developed a journal theory or self-control theory. You know that is an important theory here. Self-control theory in 1990. Occurs in 1991, agreed that a major weakness of this new theory was the Gottfredson and Hirschi did not define self-control and the tendency toward criminal behavior separately. That's important here. By not deliberately operationalizing a self-control traits and criminal behavior or criminal act, individually it is a suggest that the concept of low self-control and propensity for the criminal behavior are the same.
That's important. The criminal behavior or criminal acts individually, it is a suggests that the concept of law, self-control, and propensity of the criminal behavior are the same. Hirschis and the Gottfredson is a 1993 reverted occurs is an agreement by the suggesting it was the actually on indications of the consistency of general theory. That's important. That is a theory is a internally consistent by the conceptualizing crime and deriving from to that is a concept of the offenders and train. The research community remains divided on the whether there is a general theory is sustainable, but there is a emerging confirmation of some of its prediction. There is example Lagrange and Silverman in 1999. That's important here. यदि आगे हम अगर बात करें सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत अगले समर्थक जो थे सामाजिक नियंत्रण के ट्रेविस हिर्शे थे। ट्रेविस हिर्शी काफ़ी महत्वपूर्ण थे और उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बातों की तरफ जो है अपना मत रखा। देखा जाए तो ट्रेविस हिर्शे ने पारंपरिक या अनुरूपता में हिस्सेदारी यानी अनुरूपता में हिस्सेदारी की शब्द का उपयोग किया। उन्होंने बताया कि निवेश की टोबी की अवधारणाओं को अपनाया। यानी देखा जाए तो इन्होंने ये बात रखी कि उन्होंने जितनी भी बातें कही वो सब के सब जो थे टोबे की थी। यानी टोबे जिनके बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं उनका उन्होंने समर्थन किया और सारी अवधारणाओं को उन्होंने अपनाया और उन्होंने इसी के अंतर्गत पारंपरिकता या अनुरूपता में हिस्सेदारी को जो है आगे बढ़ाया। उन्होंने अपराध में शामिल होने के निर्णय में तर्कसंगता पर जोर दी और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ आता है कि आपराधिक गतिविधियों में सम्मिलित होने के निर्णय में तर्कसंगता यानी एक दूसरे को तर्क दिया जाता है, उस बात को इन्होंने महत्व रखा। और उन्होंने अपना भी तर्क दिया कि यदि किसी व्यक्ति के पास मजबूत सामाजिक बंधन है तो उसे अपराध चुनने की संभावना कम होती है। और ये सच है। जिस बच्चों के घर में माता पिता बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और अपने बच्चों को कंट्रोल करना जानते हैं उनके बच्चे कभी भी सामाजिक गलत गतिविधियों में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कहते हैं ना बच्चा कहीं ना कहीं घर से ही सब कुछ सीखता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी और उन्होंने सही तर्क दिया कि यदि किसी व्यक्ति के पास मजबूत सामाजिक बंधन है तो उसके अपराध चुनने की संभावना बहुत कम होगा, क्योंकि सबसे पहली बात उसके अपने परिवार का डर होगा। और ट्रेविस हिर्शी काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रखे और इनके विचार जो था कहीं ना कहीं ट्रेविस से संक्रमित था। हिर्शी ने अपने सिद्धांत के अंतर्गत अपराध का सामान्य सिद्धांत प्रस्तुत किया जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। हिर्शी ने अपराध का सामान्य सिद्धांत को प्रतिपादित करके उन्होंने बताया कि हिर्शी अपने बंधन सिद्धांत से दूर चले गए थे। देखा जाए तो हिर्शी ने जो बंधन सिद्धांत दिया था, जब इन्होंने अपने सिद्धांत लिखे तो अपने सिद्धांतों से ही दूर चले गए। ऐसा होता है कि जब हम कोई बात को लेकर चलते हैं तो हमारा मकसद और हमारा कहते रास्ते ही बदल जाते हैं। तब से हिर्शी अपने बंधन सिद्धांतों से दूर चले गए और माइकल आर गॉटफ्रेडसन से के सहयोग से 1990 में एक सामान्य सिद्धांत जिसे आत्मनियंत्रण सिद्धांत कहा गया विकसित किया। यानी देखा जाए तो पहले इन पे जो है काफ़ी हद तक टोबे का जो है प्रभाव पड़ा, लेकिन जब इन्होंने अपनी सिद्धांत प्रतिपादित किया तो उस समय इनके जो मस्तिष्क में बैठे थे वो माइकल आर गॉटफ्रेडसन थे
और इनके सहयोग से 1990 में एक सामान्य सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादित किया और ये सिद्धांत थी आत्मनियंत्रण सिद्धांत। 1951 में तर्क दिया कि इस नए की एक बड़ी कमजोरी सिद्धांत यह था कि गैडफ्रेसन और हर्शी में आत्मनियंत्रण और अपराधी व्यवहार की प्रवृत्तियों को अलग अलग परिभाषित नहीं किया था, यानी दोनों ने एक ही बात को लेकर चले थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ रख जाता है कि गैडफ्रेसन और हिशे ने आत्मनियंत्रण और अपराधी व्यवहार की प्रवृत्तियों को अलग अलग परिभाषित न करके एक ही परिभाषा दिया। इन्होंने जानबूझकर आत्मनियंत्रण गुणों और अपराधी व्यवहार या आपराधिक कृत्यों को व्यक्तिगत रूप से संचालित न करने से यह पता चला कि कम आत्मनियंत्रण और अपराधी व्यवहार की प्रवृत्तियों की अवधारणाएं सामान्य हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी कि इन्होंने जानबूझकर जो है आत्मनियंत्रण गुणों और अपराधी व्यवहार या आपराधिक कृत्यों को व्यक्तिगत रूप से संचालित न करने से यह बात साफ कर दिया कि आत्मनियंत्रण और अपराधी व्यवहार की प्रवृत्तियों की अवधारणा सामान्य है। हिर्शी और गैडफ्रेसन जो 1993 ने अर्कल्स के तर्क का खंडन करते हुए सुझाव दिया कि यह प्रस्ताव में सामान्य सिद्धांत की स्थिति का संकेत था। कि इन्होंने सभी बातों का खंडन करते हुए इस बात का सुझाव दिया कि वास्तव में सामान्य सिद्धांत की स्थिति का ये संकेत मात्र थी, अर्थात सिद्धांत आंतरिक रूप से अपराध की संकल्पना करके और उसे अपराधी के गुणों की अवधारणा प्राप्त करके सुसंगत रहेगी। यानी सुसंगत की बात की गई कि सिद्धांत आंतरिक रूप से अपराध की संकल्पना करके यानी कल्पना करके उसे अपराधी गुणों की अवधारणा प्राप्त करके सुसंगत रहेगी, यानी उसके साथ रहेगी। अनुसंधान समुदाय इस बात पर विभाजित है कि क्या सामान्य सिद्धांत टिकाऊ है, लेकिन इसकी कुछ भविष्यवाणी की पुष्टि उभर रही है। उदाहरण के लिए लांगेस और सिल्वरमैन ने 1919 में अपनी भविष्यवाणी की थी, जो काफ़ी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी थी और काफ़ी ज़रूरी भी थी। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। अगला टॉपिक और भी महत्वपूर्ण रहेगा, तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, तो सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी तिरपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।